Welcome to Love Heals Cancer and Zanonco.io. This is a cancer healing journey talk where we invite speakers who have gone through cancer, maybe as patients, caregivers, or as survivors, and it inspires others who are going through a similar journey right now. So, thank you so much for giving out your time for this. It is an honor to have you with us. So, Anjali ji, can you please tell us something about yourself and then start with your journey through cancer? Yeah, Manvi, thank you so much inviting me here. It's a great for me. I can talk about my journey and all. So we'll start. I'm Anjali Gadoya from Mumbai. I'm 59 years old. I have detected cancer 2015. And the symptom, मुझे ऐसा लग रहा था मेरे shoulders pain हो रहे थे. Shoulders were getting pain and back pain also. So I went to my doctor. Doctor says कि maybe bone का, because I have arthritis from the beginning. Maybe it may be due to arthritis. So some medicine we took and all. One fine day, I found one lumps on my breast, small lumps. So I told my husband, what is this? Cancer to nahi hoga? He said, shut up, man. Aisa kuch nahi hoga tujhe. You are so active. Nothing will happen. So I went to my family physician doctor. Then he advised me to go for the biopsy and all. So report had come and it was positive cancer. So we were very shocked. Family mein pehli baar aisa ho raha hai. And cancer means what? You only learn in the books and films, you know. Cancer matlab mar jana. Because we are not practical about that. किसी को हुआ नहीं है family में, तो मैंने सोचा बाप रे अब तो मैं मर जाऊंगी ना, अब तो मैं मर जाऊंगी ना. So it was very, you know, painful time and period was very bad financially and everywhere. My mother-in-law was 95, she was bedridden, and I got this. So I don't want to tell my mother-in-law I got cancer. I didn't say anything to my mother-in-law, and only my son and my family, my son and my husband, उनको ही पता चला कि ये है करके. Now mastectomy करना पड़ता है, डॉक्टर से करना ही पड़ेगा आपको. That also we have done. वो भी आने के बाद I think 15-20 days लगा वो होते होते everything कर चेकअप करते करते, and doctor said now you have to go for the chemo. Oh my God, chemo! I research की मैं पूरा कंप्यूटर में chemo क्या होता है, because हमारे लिए नई चीज थी वो. पता चलो उसमें बाल चली जाती है, आईब्रो चली जाती है, आईलिड्स चली जाती है. Oh my God, I'm very much long hair, सब कुछ. I'm so beautiful. सब लड़की अपने आप को beautiful समझती है. Then I saw no, I'm going to do suicide. Shocking for me. You know, tears roll out sometimes, you know, when you speak this. But now I'm positive, no problem. अभी तो लंबे लंबे दाल है मेरे. So I told my friend, मैं तेरे घर आती हूँ 1 साल के लिए. I'll stay with you. And जब मेरे बाल वाल आ जाएंगे ना, I'll come to my place. She said, okay, you come, no problem. Then my daughter said, Mama, you have your own house, you have your own room. Why want to go? तूने सिगरेट तो पिया नहीं, दारू तो पिया नहीं. Why are you getting scared? I said, society, my building, my people will laugh at me. कि टकली हो गई, ऐसा जा रही है. Then I got confidence, you know. I said, नहीं, my family are there, families are there. मेरे घर वाले हैं मेरे साथ. My husband is there, my kids are there. Why should I lie the people like? मैंने बोला हाँ मुझे कैंसर है. बिंदास मैंने बोल दिया. You know, some people tone me like, you know, बहुत कमजोर हो गई आप. ऐसे मुझे कैंसर है. बिंदास ऐसे मुझे कैंसर है. तो उनका बोलती बंद हो जाती थी जब मैंने बोल दिया. And my God, I started my treatment. चालू किया treatment financially. We went all the trustees for the money, financial help के लिए, because we are staying in big building. We are staying multi-story building, and my husband was a very good businessman. And that those periods were very bad, you know, like mother-in-law is not well. So wherever we went for the financial help, what they asked the first question, I want to tell everyone in this इसे कहना चाहती हूँ कि लोगों का वक्त आता है, कभी बुरा वक्त आता है, कभी अच्छा वक्त आता है. That doesn't mean I'll sell my flat and go. कैंसर हो तो घर बेच डालो. इतने पैसे हैं, घर तो सबका होता है. बुजुर्गों ने, मेरे हस्बैंड ने लिया होगा घर, लेकिन वो टाइम पे हमको पैसे की जरूरत है. Why we are coming to you for financial help? At least वो टाइम पे अगर तुम उनको 10,000 भी देते हो ना, it likes 1 lakh for me. But nobody helped, you know, कोई हमको मदद नहीं किया. जो भी मेरा ऑपरेशन का खर्चा निकल गया. My mediclaim is only for 3 lakhs. 3 लाख का ही था. मैंने कभी सोचा ही नहीं, पहली बार बीमार पड़ी हूँ. Then my husband sold the गांव का जगह and he done my treatment. Treatment तो हो गया and I was very positive. I have to watch all the, you know, YouTube में बाल कैसा बनाना है, मेकअप कैसा करना है and all. I went for first chemo. Chemo के लिए मैं गई डॉक्टर के पास.
डॉक्टर ने मैं आई सेड ओनली वन वर्ड, डॉक्टर मैं मरना नहीं चाहती हूँ, मैं जीना चाहती हूँ. ही सेड शट अप अंजलि, नथिंग विल हैपन, यू आर वेरी मस्तीखोर लेडी. ऐसे भी आई एम वेरी फन लविंग लेडी, मस्ती बहुत करती हूँ मैं. देन फिर मेरी एक फ्रेंड आती थी. देन माय हस्बैंड टोल्ड मी ना, मदर इन लॉ इज नॉट वेल, मम्मी को देखूं यार, तुझे कैसे करेंगे हम लोग एडजस्टमेंट. सो आई हैव वन माय बेस्ट फ्रेंड, हम लोग कभी मिलते नहीं, साल में एक ही बार मिलते हैं. मैंने खाली उसको बोला मुझे कैंसर हो गया. तो उसी से शट अप, तेरे को तो बकवास करने की आदत है. क्योंकि मैं स्कूल में थी ना, कभी माँ को मार डालती थी, कभी बाप को मार डालती थी. सो आई सु बंक माय स्कूल, यू नो. तो उसको पता है ये मस्ती को रहे. मैंने बोला नहीं नहीं, एंड आई स्टार्टेड क्राइंग. बोलती सच्ची हुआ है? मैंने बोला हाँ यार मेरा कीमो. बोलती डोंट वरी, आई विल कम, जितना कीमो होगा आई कम विथ यू, एंड मैं तेरे को ड्रॉप करके मैं अपने घर जाऊंगी. दो शी हैज अ फैमिली विथ 3 किड्स, हस्बैंड एंड उसका हस्बैंड ने बोला जाना उसके लिए. सो वी बोथ यूज्ड टू गो, फुल मेकअप, बंडाना, तैयार वैयार होके, कान में बड़े बड़े. आई लर्न डूइंग मेकअप आफ्टर कैंसर, यू नो. नहीं तो पहले मैं भोली भाली सीधी सादी थी, सिंपल कपड़े पहनना, छोटे. Sorry to interruption. एंड शी बॉट द कैब फ्रॉम हर हाउस. आधा घंटे का रास्ता उसके घर से. उसने ड्राइवर को बोला जल्दी जल्दी चलो, मेरी फ्रेंड को कीमो में कैंसर पेशेंट है, उसको लेके जाना, बहुत लेट हो गया, 1 बजे का कीमो, 1:45 हो गया इधर. डॉक्टर अरे ड्राइवर से ओके ओके मैं लेके चल गया. एंड व्हेन आई गॉट डाउन फॉर माय लिफ्ट, मैं तो बांध ठान के मस्त तैयार होके, बड़े बड़े हील्स पहन के, हाथ में बैंगल वैंगल पहन के, कीमो की तैयारी चल रही, मैं जा रही हूँ नीचे. देन ड्राइवर पूछ रहा है पेशेंट किधर है. उसी से यही पेशेंट है. बोलते oh my god ये पेशेंट है. मैं बोली yes. And I started my chemo. Chemo was पहली बार तो बहुत तकलीफ हुई. Then I thought ये तो used to है, अभी तो लेना ही पड़ेगा, इसमें कोई रास्ता नहीं, इतने इतने इंजेक्शंस ले लिए, कोई बात नहीं, I will take it. Then I started, you know, हॉस्पिटल में we used to like a small party. हम पूरा खाना खाते थे, जूस पीते थे. कीमो 1 बजे चालू होता था, me and my friend. फिर आते थे, मैं डॉक्टर को, नर्स को पूछती मुझे मिरर वाला रूम देना, मुझे लिपस्टिक लगानी है. बाहर में गया, दर्द वर्द आई डोंट बॉदर, आई वांट टू लिव माय लाइफ, यू नो. मुझे एक ऐसा चीज बनना है, लोग मुझे देखें, मैं यही सोचती थी. ऐसे ऐसे आई फिनिश माय 6 कीमोस, सब कुछ अच्छा हो गया. पूरी रात भर के 3, जिस दिन कीमो होता था मैं 3 पिक्चर्स देखती थी यूट्यूब पे, 3 मूवीज कंटिन्यू, फुल नाइट आई टू अवेक, यू नो. एक मोरल ऑफ द स्टोरी आता है, जूना पिक्चर, यू नो, लाइक मशान पिक्चर हो गया, रेखा का पिक्चर है, टू सी. और मेकअप देखती थी, कैसे विग पहनते हैं, कैसा ये करते हैं. Chemo finish and doctor said now Anjali everything is done. Now you, I said doctor everything is done. So मैंने वीडियो रिकॉर्ड किया हस्बैंड के साथ, गाना गाया, मस्ती हो गया, नर्सों को बुलाया. एवरी डे सेल्फी होता ही था मेरा सबके साथ, नर्स के साथ, रिसेप्शन के साथ. एंड आई वाज वेरी लाइवली. ही शी सेड अभी रेडिएशन के लिए जाना पड़ेगा. ओह माय गॉड. मैंने बोला अब रेडिएशन भी बाकी है. इट वाज शॉकिंग फॉर मी. मैंने बोला इतना इंजेक्शन खाया बस नहीं. यू नो व्हेन दे पुट द पोर्ट ओवर हियर, मेरा तो 4 ऑपरेशन हुआ है. I finished with 4 operation. एक बार पोर्ट बिठाते हैं, एक बार पोर्ट निकालते भी है, because they inject from here and this is very delicate place, you know, you get poking very badly, you know, बहुत दर्द होता है. बाकी सबको यहाँ से होता है, मुझे यहाँ से होता है. जिसका ब्रेस्ट निकाल देते हैं ना, उनको यहाँ से कीमो होता है, because these hands are numb, there is no veins ना, so they do from here for safety के लिए. Then I went for the radiation. रेडिएशन के लिए मैंने अपॉइंटमेंट लेके गई. एंड आई एज यूजुअल, मुझे पता नहीं रेडिएशन क्या होता है, मैंने सोचा भी नहीं ना, यूट्यूब में देखा. जैसे ही मैंने ऐसा देखा ना, दवाखाना कर्टन ऐसा हिला, इट्स लाइक अ वेल्डिंग मशीन, जैसे कोई उसको फायर दे रहे. भाई गॉड, मैं तो बहुत डर गई. मैंने हस्बैंड को बोला ये मेरे साथ भी होगा क्या, मेरी क्या हाल, मैं तो काली काली हो जाऊंगी, मैं पागल हो जाऊंगी. जिसे नहीं कुछ नहीं होगा, खाली बताने आया हम लोग. देन आई वाज वेयरिंग माय बंडाना, गॉगल वॉगल पहन के मैं तैयार होकर से बैठी थी. तो सडनली डॉक्टर केम आउट and all the patients were on the line, you know, सब अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे. तो बेचारे सब पतले, you know, दुखी होके, पेनफुल, they were like painful, like पेन में थे ना, क्योंकि उनका रेडिएशन होना बाकी था. तो डॉक्टर ने जैसे बाहर आया ना, he look at me and he say hi, तो मैंने भी हाई किया. मैं उनको पहचानती नहीं. तो मेरे हस्बैंड ने बोला तुझे कौन है वो. मैंने बोला शायद डॉक्टर है. तो तेरे को कैसा. मैंने बोला मैं ब्यूटीफुल लग रही थी इसलिए मुझे हाई किया. एक्चुअली व्हाट वाज द रीजन, यू नो, ऑल वेयर उसका फॉलोअप के लिए आते हैं. आई वॉज अ न्यू पेशेंट, तो उन्होंने मुझे वेलकम किया. या फिर मैं आई और मैंने उनको बोला, अंदर गई तो उन्होंने मुझे लेटाया, सब कुछ देखा. तो मैंने बोला उनकी तरफ देखी तो वो भी, मैंने सब निकाल दिया, बंडाना वंडाना. मैंने सोचा अभी मुझे देंगे शायद, वो कुछ तो करेंगे मुझे. वेरी स्कैर्ड. आई वेंट इनसाइड. तो बोला हार्ट बीटिंग बहुत फास्ट हो रहा है आपका. उन्होंने डॉक्टर मुझे डर लग रहा है रेडिएशन से. तो उन्होंने बोला आओ. बोलता नो रेडिएशन. ओह माय गॉड, आई एम सो हैप्पी, यू नो.
आपको रेडिएशन नहीं लगेगा। हाय गॉड, मैंने बोला लाओ, मेरे को मिरर है तो लाओ, मैं बंडा वंडा पहनूं, बाहर निकली एंड आई थैंक गॉड कि मुझे रेडिएशन नहीं होगा। लेकिन फॉलो अप करना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा जो जो लिख के दिया है। आफ्टर दैट मैम व्हाट आई टेल यू, जिंदगी में क्या करना है, एक ही चीज सोचा है, जिंदगी तो मिल गई मुझे, बाल भी आ जाएंगे मेरे, विग्स भी है, विग्स आई टू नॉट राइज टू वेयर बंडाना। अब मुझे क्या करना है, मुझे कुछ तो करना है लाइफ में, क्योंकि मैं आई वाज बोर्न एंड बॉट अप इन बोर्डिंग स्कूल, कलकत्ता बोर्डिंग में। मैं एक ऑर्फनेज में बड़ी हुई हूँ, दैट इज माय डिफरेंट स्टोरी, दैट फॉरगेट, आई जस्ट टेल यू, मैंने वहां पे बड़ी हुई, तो हमको बहुत डांस सिखाते थे वहां पे सब बच्चों को। और मुझे जब बाद में, जब व्हेन आई वाज इन 9th स्टैंडर्ड, आई केम टू माय मदर्स प्लेस। जब भी मैं 9 साल की हुई, मैं 3 साल की थी तब से बोर्डिंग में थी, 9th में आई तभी घर पे आई, तभी हेलन की बहुत गाना वगैरह बहुत बहुत फेमस था। तो मुझे ऐसी था कि कैबरेट डांस ऐसा होता है, ऐसा होता है, सब मुझे, मेरे दिमाग में वही था, मुझे भी ऐसा डांसर बनना है, कोई मुझे देखे, मैं किसके सामने डांस करूं, मैं मुझे भी एक डांसर जैसा बनना है, मेरे ख्वाब थे। बंगाली डांस आई टू डू इन कोलकाता, रविन्द्रनाथ टैगोर का डांस एंड ऑल आई टू डू। ये मेरे दिल में आ गया, हेलन जैसे मुझे बनना है, बस मुझे डांस ही करना है। और आई ज्वाइन वन ग्रुप, ऑनलाइन एक ग्रुप था, फोक डांस का ग्रुप था, आई ज्वाइन दैट डांस ग्रुप में ज्वाइन किया। तो उन लोग ने क्या किया, ये समझते कैंसर वाली है ना, पागल है ये, तो मर जाएगी आजकल, तो मुझे लोग पीछे डालते थे, पीछे के रो में डालते थे। मैं वो सब करती थी, जाना, मैं सोचती मेरे में कोई कमी होगा शायद, लेकिन उनको पता नहीं मैं भी हिल विल सकती हूँ करके। देन दे पुट मी बैक, ओके। फिर जब मुझे आस्ते आस्ते ओपनिंग मिलने लगी, आई लेफ्ट देम, आई जॉइन माय फोक डांस टीचर, जिसने माय हैंड्स, माय रिस्ट इज लॉक, दिस रिस्ट इज लॉक बिकॉज आर्थराइटिस एंड मे बी सम साइड इफेक्ट। तो उन्होंने मुझे, मेरी टीचर ने मुझे डांस सिखाया, बहुत अच्छी तरह सिखाया। टुडे आई एम अ फोक डांस परफॉर्मर। फिर मैंने बेली डांस ज्वाइन किया, टुडे आई कैन डू बेली डांस आल्सो। फिर मैंने तैशीन ज्वाइन किया, आई कैन डू तैशीन आल्सो। और बड़ी बात ये है, मेरा जब भी कैंसर हो गया, खत्म हो गया, एवरीथिंग वाज डन, मैं स्विमिंग सीखने के लिए बहुत सोच रही थी, क्योंकि मेरे बच्चों को स्विमिंग आता था, मुझे नहीं आता था। जब हम रिसोर्ट, जहाँ हम ऐसे बैठे रहते थे, मैं स्विमिंग के लिए गई, आई वाज 53 इयर्स ओल्ड दैट टाइम। मैंने सोचा हाथ पाँव मेरे अच्छे हो जाएंगे, तो मैं स्विमिंग तो की, लेकिन जो मुझे कोच मिला ना, ही डिडंट रिस्पॉन्ड मी। उसको लगा ये बुड्ढी है, ये कैंसर वाली है, इसका क्या करना है, तो सब मेरे को मजाक करते थे, क्योंकि मैं पानी से बहुत डरती थी और मुझे इंसल्ट फील होता था, तो भी मैं चुप रहती थी। मैंने मेरे हस्बैंड को बोले, लो मेरा बहुत मजाक उड़ाते हैं, मैं रोती हूँ ना, मैं गिरती तो हंसते लोग। बोला कोई बात नहीं, तू तेरा एक्सरसाइज करके आ जाएगा। देन आई मेट वन कोच, उसको मैंने पूछा, सर आप मुझे सिखाओगे? हाँ हाँ, आप मेरी मम्मी जैसे, डू यू बिलीव 15 दिन में मुझे डाइविंग और स्विमिंग सिखा दिया। आई कैन जम्प फ्रॉम, आप मेरे पास वीडियोस भी है। और द वे ही टॉट मी लाइक मदर, सब बोले थे। मेरे हस्बैंड वो पुल पे थे, शालो पुल पे थे, मैं डाइविंग के लिए ऊपर चढ़ गई। तो किसी ने मेरे हस्बैंड को बोला, अरे अंजलि तो ऊपर गई है। तो मेरे हस्बैंड बोला, हाँ उसको कॉन्फिडेंट है, शी विल डू। एंड ट्राइस नहीं, 4 बार। जो पहला वाला कोर्स था ना, वो देख रहा था कि अंजलि कहाँ से कहाँ पहुंची। मैं हारी नहीं, मैंने किया, मैं करूंगी बोली। एंड आई कैन डू स्विमिंग, मेनी थिंग्स आई कैन डू। आई हैव डन पोल डांस आल्सो। मैंने सोचा पोल डांस में होता क्या, चलो अपन जाके देखते हैं। वो भी किया मैंने, दैट आल्सो आई हैव डन। ड्यू टू माय रिस्ट आई कैन नॉट फ्लिप नहीं कर सकती मैं, सो आई लेफ्ट दैट। मैंने बोला जितना सीखना था मैंने सीख लिया। at least I can perform like chair tease और cabaret type and dance, I can do that. थोड़ा थोड़ा सब कुछ सीखा है लाइफ में, एंड आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी सेटिस्फाइड लेडी, क्योंकि मुझे डॉक्टर्स इतने अच्छे मिले, फ्रेंड्स इतने अच्छे मिले, एंड फैमिली इतने अच्छे मिले, सो आई केम आउट फ्रॉम दिस। नाउ आई ऑलवेज हंट फॉर द कैंसर पेशेंट्स। अब मैं जाती हूँ, उनको पर्सनल मिलके आती हूँ, ऐसा नहीं ऐसा कर, ऐसा नहीं ऐसा, ऐसा खा, वैसा खा। They are very happy with me and always grateful to my friends, doctors and families कि मुझे ये जिंदगी मिली है वापस। And very happy, मेरी जर्नी बहुत अच्छी रही। स्टार्टिंग में थोड़ा रोना धोना था, फिर तो मैं बिंदास हो गई। अभी भी मैं सोचती हूँ, डू टुडे ओनली, कल के लिए वेट मत करो, कल किसने देखा है, कुछ नहीं है। बट बाय द ग्रेस ऑफ गॉड मेरी सब रिपोर्ट नॉर्मल आती। लास्ट वीक में इसमें भी थी, मेरा फॉलोअप चल रहा था, बट डू बिलीव मेरा डायबिटीज आ गया था 375 लास्ट थर्सडे, फर्स्ट टाइम 375 डायबिटीज आया। आई वेंट टू माय स्पेशलिस्ट। पहला मैंने मेरा सर्जन के पास गया फाइल लेके, कैंसर का रिपोर्ट इज नॉर्मल अंजलि, एवरीथिंग इज ओके, आई एम वेरी हैप्पी। मैंने हस्बैंड को बोला, शी इज डूइंग एवरीथिंग। मैं उसका फेसबुक देखती हूँ क्या क्या करते रहते, दिस इज वेरी एक्टिव। मैंने बोला डॉक्टर दूसरा रिपोर्ट को देखो मेरा। बोला क्या हुआ? अरे ऐसा कैसा हो गया? मैंने बोला मैं शुगर तो खाती नहीं हूँ, ड्यू टू स्ट्रेस समथिंग वाज इन माय हाउस, सम आर्गुमेंट्स वाज गोइंग, और मैंने एकदम सीरियस ले लिया था। अच्छा मैं डिप्रेशन में नहीं गई, माय हस्बैंड वाज वेरी सपोर्टिव। में 3-4 दिन में सोई नहीं, एंड आई वेंट फॉर माय चेकअप।
फिर मुझे डॉक्टर ने बोला आपको अभी गोली लेना पड़ेगा। ऐसे आई डोंट वांट टू बिकम ए हैबिचुअल, मैं कैंसर से निकली हूँ, मुझे डायबिटीज नहीं चाहिए। उन्होंने कहा 1% का HbA1c रिपोर्ट करो तो। सो आई वेंट फॉर द रिपोर्ट, देन माय फ्रेंड टोल्ड मी अंजलि तू एक काम कर, वापस तू ब्लड शुगर चेकअप कर। डू यू बिलीव, मैं गई चेकअप किया, वही लेबोरेटरी में, सेम जगह पे, 170 380 में 375 में से 180 में आ गई मैं, माय डायबिटीज। 4 दिन में फर्क पड़ गया। 180 इज ऑल्सो नॉट गुड, आई नो दैट, 140 होना चाहिए, मेरा 180 है। तो डॉक्टर टोल्ड मी आप आधा गोली लेना करके, जो स्पेशलिस्ट है। मैंने बोला आपने तो बोला 200 रहेगा तो गोली लेना नहीं पड़ेगा, 180 है। तो बोलता नहीं नहीं आपको लेना पड़ेगा और 1 महीने के बाद दिखा। ऐसे ओके। मैं घर पे आके मेरी फ्रेंड को पहले न्यूज दिया, रही मेरा 180 है, डॉक्टर ने बोला आधा गोली खाने से, डोंट ईट एनी मेडिसिन, डू योर ऑल। तू स्ट्रेस में थी ना, तेरे को टेंशन बहुत हो जाता है। मुझे पता चल जाएगा क्या है, बिकॉज आई डोंट हैव ब्लड शुगर, आई नो दैट। बट आई एम हैप्पी विद द पीपल जो मुझे मिले हैं जर्नी में, डॉक्टर्स, सर्जन्स, मेरे फिजिशियंस, मेरे कीमो डॉक्टर्स, एवरीवन वाज ग्रेट फॉर मी, एंड दे बड़े प्यार से मुझे उन्होंने देखा। एंड आई रिमेम्बर जब मेरा कोट यहाँ पे बिठाया था तो मैं ड्रेसिंग करने जाती थी, मेरी जो सर्जन है तो मुझे बुलाती थी ड्रेसिंग करने के लिए, बिकॉज टीचर्स वेयर देयर। तो एक आया जस्ट रूम के अंदर विदाउट नॉकिंग, शी केम इनसाइड। उन्होंने वो जो आया को शाउट किया ना, आपको समझ में नहीं आता है, मेरे कैंसर पेशेंट है, उनको डिस्टर्ब होता है, यू नो द कैंसर पेशेंट। उसने ऐसा कैंसर पेशेंट के लिए इतना अच्छा बोली है ना उसने, हेड्स ऑफ टू हर। आज के बाद कभी अंदर नहीं आना है, मेरे पेशेंट्स को डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। ओनली शी केम इनसाइड, लेकिन उसने हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंस बोला ना। सो आई ऑलवेज एडमायर, जब भी मैं जाती हूँ उनके साथ फोटो निकालती हूँ मेरी सर्जन के साथ, और फेसबुक पे अभी भी डाला, मैंने परसों डाला है। आई केप्ट हर नेम ब्यूटीफुल डॉक्टर, her name is beautiful doctor, मैंने डाला उनका। और आई मेट माय डेंटिस्ट, मैं दांत साफ करना, क्योंकि आई गॉट द मिसेस इंडिया। अच्छा हाँ वो हो गया, अब क्या करना, डांसर तो बन गई। फिर मैंने फेसबुक में देखा मिसेस इंडिया का कंपटीशन चल रहा है दिल्ली के लिए, नेशनल लेवल पे। अच्छा लेट्स अप्लाई, देखो ना क्या होता है भाई, इतनी सुंदर तो नहीं है, मुझे पैचेस तो है स्किन पे। पर डॉक्टर से, मेरे स्पेशलिस्ट ने बोला आप करो मत कुछ भी, बिकॉज अगेन यू गो फॉर स्विमिंग, फिर काला हो जाता है फेस, और ये रहने वाला पिगमेंटेशन, आप मत करो, टेम्पररी होगा। ऐसे ओके। Then I called the Mrs. India wala people, Mrs. Vinita Srivastava. I'm Anjali Kadoya. I'm a cancer survivor. I don't have any breast, I said, but I want to come for Mrs. India. मुझे दिखाना है मेरे पेशेंट्स को कि कैंसर पेशेंट भी कर सकती है करके। She said, okay, you can come. मैंने एक ही पूछा, बिकनी राउंड नहीं है ना? She said no, because you know we have to wear some special inner. ब्रेस्ट कैंसर सर्वाइवर्स को स्पेशल पहनना पड़ता है, उसमें फिर दिखाई देते। लेग्स एंड इज ओके, वी आर वेरी सेक्सी, आई नो दैट। वो कर सकती मैं, लेकिन उन्होंने बोला नहीं, बिकनी राउंड इज नॉट देयर। सब राउंड हो गया, एंड किसी को पता नहीं था मैं कैंसर सर्वाइवर हूँ, होल ग्रुप में, ऑल वे नॉर्मल पीपल। और जब स्टेज में अनाउंस किया कि अंजलि गडोया, आई वाज शॉक्ड कि इतनी ब्यूटीफुल लड़कियां, इतनी हाइटेड है, इतनी मेकअप वाली है, सबके बाल, मैंने भी बाल स्ट्रेटिंग वेटिंग किए थे, मैं भी अच्छी लग रही, लेकिन मेरे से कंपैरिजन में दे वर वेरी नाइस, एंड उनको सब कुछ आता था, मैं भी कैटवॉक की, सब कुछ की, लेकिन मैंने सोचा नहीं मुझे मिलेगा करके। लेकिन दे अनाउंस माय नेम, अंजलि गडोया, कैंसर सर्वाइवर, शी इज अ कैंसर सर्वाइवर। दैट टाइम ऑल 46 जो लेडीज थी ना, वो सब देखने लगी मुझे, अरे अंजलि इसलिए इतना मस्ती करती है, इसलिए इतनी लाइवली है, सबके साथ धमाल करती है। यस आई से, मैं जिंदगी जीती हूँ। And I said, this trophy and crown, what I got, this is for my cancer patients and cancer survivor, to show them if I can, you can also. जिंदगी खत्म नहीं हो जाती है। दिल्ली गई थी मैं 4 दिन के लिए, रेडिसन ब्लू में रही, होटल में सबके साथ मजा किया। माय हस्बैंड वाज देयर, ही वाज इन अदर होटल। बाद में फिनाले दिन वो आए, and it was Diana Hedden had come. For me it was a proud moment, like you know. Now I'm going for Mrs. Maharashtra, I'm going. अभी बिकॉज ऑफ कोरोना इट इज पोस्टपोन, मे बी अगस्त में मुझे जाना पड़ेगा। एंड सेकंड नारी सम्मान अवार्ड आई गॉट, एंड लास्ट मार्च में मुझे मिला है। ऑल ओवर इंडिया में 108 लेडीज को लिया, उसमें से मैं भी आ गई। आई वेंट टू हैदराबाद फॉर माई कलेक्ट माई अवार्ड, यू नो। और मैं एक्टिंग भी सीखती हूँ, सोलो एक्ट करती हूँ, मैंने एक प्ले भी किया है, बापरे बाबूजी, हिंदी प्ले आई हैव डन। इट इज अ ग्रुप प्ले, 4 शो हो चुका मेरा, फिर कोरोना आ गया। देन आई स्टार्टेड ऑनलाइन सोलो एक्टिंग। सोलो एक्टिंग में भी मुझे 3 अवार्ड मिला है, ऑनलाइन में, क्योंकि लाइव सेशन लेते थे, वो भी मुझे मिला है। और दिल्ली में भी टैलेंट शो एक था, उसमें भी मुझे अवार्ड मिला, 2500 कुछ मिला है टोकन। एंड दे कॉल मी इन जनवरी फॉर द फाइनल राउंड के लिए,
and there I will get 2 lakh rupees cash if I win. So I'm doing somewhat कुछ कर रही हूँ. अब एक जिंदगी में एक ही अरमान बाकी रहा है, स्काई डाइविंग. वो तो इंडिया में होना मुमकिन नहीं है. Abroad I will try. Yeah. This is my journey. Very good people, good teachers. Yeah. One more thing I'll tell you. When I wanted to join belly dance, मैंने सोचा belly dance मुझे करना ही है, क्योंकि मैंने दुबई में belly dance देखा था. मुझे करना, ये रह गया, ये करना. Pole dance मैंने कर लिया था. I went to meet my teacher. I say I don't have one breast, but I want to do belly dance. She said, yeah, Anjali, you can do, no problem. You can do. उससे मुझे इतना like a baby, you know, she was taking care of me. I'm not, मैं उनसे बहुत बड़ी हूँ. उन लोग they are only 30 की है, मेरे बच्चे जैसे. But they used to take care of me like, you know, small baby. Yeah, Anjali, shake this right, left, right, and do. Shimmy करो, ये करो. और मुझे एक बेबी की तरह. I have finished 8 levels of belly dance. 8 levels. So this is my journey. Teachers are very good. And my folk dance teacher, Shamli Shah, she took me like, you know, I couldn't sit down. She made me sit down. Folk dance में नीचे बैठना पड़ता है. बैठो करके मुझे state level का award मिला folk dance. मैं चाहती हूँ बिंदास, हार जीतू कोई बात नहीं, लेकिन मैं जीतना चाहती हूँ because I want to show my people. My people means my cancer people. My people, not my family I'm talking about. My people is my cancer survivors and cancer patients. कोई पेशेंट ऐसा रहता है तो मैं बोलती अरे उठ के यार डांस कर मेरे साथ, ठीक हो जाएगी तू, कुछ नहीं होगा तुझे. What is your passion? Go for that. This is my journey, and you also loving, my darling, looking so sweet. This like this I meet all the people in my life, you know, all beautiful people, encouraging me. मुझे हिम्मत देते हैं सभी. This is my journey, sweet. तो अंजलि जी, आपने मुझे बताया कि शुरू में जब, जैसा कि सबके साथ होता है, जब उन्हें कैंसर के बारे में पता चलता है तो वो डर जाते हैं और कई बार ऐसा होता है कि स्ट्रेस लेने लगते हैं, उदास हो जाते हैं. सो आपने इस चीज से अपने आप को चेंज करके बिल्कुल लाइवली, जैसा कि आपने बताया, आपने ये ट्रांजिशन कैसे किया? मैंने सोचा, किसी ने मुझे चैलेंज किया, यू नो, वी हैव मेनी फ्रेंड्स. आई हैव, मुझे फ्रेंडशिप करने की बहुत आदत है, फ्रेंड को जमा कर पहले से, बिकॉज आई वाज इन द बोर्डिंग, तो मुझे फ्रेंड्स मिलते नहीं थे. और माय पेरेंट्स आर वेरी स्ट्रिक्ट, नॉट फ्रेंड्स आर नॉट अलाउड. तो मेरे जो फ्रेंड्स होते हैं ना, उसमें से कोई यू नो वन नेगेटिव फ्रेंड भी होता ही है, जैसे एक पागल फ्रेंड भी होता है ग्रुप में. वन शी चैलेंज मी, यू नो व्हाट से, अब उसमें क्या रहेगा, अब क्या कर पाएगा, आप कुछ नहीं कर पाएगा. तो वो रूमर होते होते मेरे कान तक आई वो आवाज. मैंने बोला ऐसा ऐसा बोला उसने मुझे. ओके, आई विल सी नाउ. और मेरे फ्रेंड्स इतने बोला अरे कुछ नहीं है, बाल चले जाएंगे, बाल वापस आएंगे. जब मैं वॉशरूम में, जब मेरे बाल गिरने लगे ना, मेरे घर पे कोई नहीं था, एवरीबॉडी वाज आउट, माय मदर इन लॉ वाज स्लीपिंग इनसाइड. मैंने वही मेरी फ्रेंड को फोन किया, जो कीमो वाली सुजाता को फोन, अरे मेरे बाल गिर रहे हैं, मैं क्या करूं. उसने क्या बोला पता है, एक प्लास्टिक की पॉलिथीन की थैली ले, बाल डाल, कचरे में डाल, बात खत्म. डोंट बॉदर, इट विल कम. तू जिंदी है ना, वो बहुत हो गया. तो ये फ्रेंड्स जो कोई चैलेंजेस होते हैं, यू नो, चैलेंज करते हैं, अरे इसमें क्या है, अब तो मर गई, हो जाने वाली है. तो मैं मरना नहीं चाहती. एंड माय बेटा है, मेरी बेटी है, मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन है, तो मुझे उसके लिए जीना है. और मेरे हस्बैंड के लिए मुझे बहुत जीना है, क्योंकि उसने मुझे जो सेवा की है कीमो के टाइम में, कैंसर के टाइम, जो मुझे इतने सालों में प्यार नहीं मिला ना, मुझे कीमो कैंसर में मुझे उसने इतना प्यार दिया. नाउ आल्सो ही गिव्स मी वाटर, ये तैयार करेंगे. जब व्हेन आई वेयर, यू नो, इयररिंग्स वगैरह पहनती हूँ तो बोले ये अच्छा नहीं आया, आज के ऐसा लग रहा है, एक फोटो सेशन करो ना, देखो कैसे मैं लग रही हूँ. देन ही से दिस इज ओके. और ही इज वेरी पॉजिटिव. नाउ आल्सो इज टेलिंग, मैं बिलीव नहीं कर सकता तुझे कैंसर हुआ करके. मैं बोले होके चला गया, वन पार्ट ऑफ द बॉडी मेरा चला ही गया, तुम ऐसा बोल रहे. मैं कहने, मैं सोच भी नहीं सकता, बिकॉज यू आर सो एक्टिव. हुआ कैसा, बिकॉज यू नो लिविंग स्टाइल, खाने का एनी टाइम, वो टाइम में हम लोग को ध्यान नहीं देते, बच्चे छोटे हैं उनका ही ध्यान देते हैं. माई फ्रेंड्स एनकरेज मी, माई फैमिली, मेरे बच्चे. और एक चैलेंज था दुनिया को दिखाना है, क्योंकि मैं ना, आई एम वेरी रफ एंड टफ लेडी. आई फाइट स्ट्रेट फॉरवर्ड, मैं सीधा मुंह पे बोलती, पीछे से नहीं बोलती. आई वॉज अ बाइकर, मैं पुलिस के साथ भी फाइट करती थी, गाड़ी लेके भाग जाती थी, छुप जाती थी. और जब मुझे पकड़ने आते थे ना, मैं वो स्प्रे से काला स्प्रे मार देती थी मेरे बाइक को, गैरेज में जाके. भैया को बोलते 10,000 होता ना, कलर चेंज करो, बिकॉज उसको पता था अभी हेलमेट का सिस्टम नहीं था, यू नो, दोस डेज. मैं बात कर रही हूँ 35 साल पहले की बात कर. आई वॉज अ बाइकर. अब भगवान ने इतनी सजा दी ना, हाथ मेरा रिस्ट लॉक हो गया, आई कांट ड्राइव नाउ. इट्स ओके, पार्ट ऑफ द लाइफ, बट आई एम एंजॉयिंग माय लाइफ. तो फ्रेंड्स एंड एक पॉजिटिविटी कि मुझे करना है.
ये करना ही है। और मैं देखती थी कैंसर की स्टोरी बहुतों की देखती थी, उन्होंने ऐसा किया, उन्होंने ऐसा किया, तो मैं भी कर सकती हूँ। और मेरे मन में एक ही था, मुझे डांसर बनना ही है, डांसर बनना ही है। और मेरे हस्बैंड मुझे परमिशन देते, मुझे कुछ करना है कि लोग मुझे देखें, मैं लोगों को नहीं, लोग मुझे देखें, वही मेरे मन में था। आई एम लाइक ए बुद्धू, घर संभालो, कैंसर हो गया, घर में पड़ा रहो, ये 4 दीवारी में रहो, बच्चों को खाना बनाओ, उसको बड़ा करो, ये करो, थिएटर में पिक्चर देखने, घर में आके सो जाओ। ये मेरी जिंदगी नहीं है, मुझे भी कुछ बनना है। हाँ, मैं मरते टाइम फिर मैंने टैटू बनवाया कैंसर फ्री, यू कैन सी। उस पर भी मुझे डॉक्टर ने बहुत गुस्सा किया, मेरे डॉक्टर सर्जन ने, विदाउट हुज परमिशन, दिस एंड आई कांट डू, बट दिस एंड। मेरे बच्चे ले गए मुझे कि मम्मा करो, तुमको फैशन करना ना करो। मैं बोला हाँ मुझे करना है। दिस इज कैंसर फ्री, दिस सिंबल इज कैंसर फ्री। तो Yeah. दिखाना चाहती हूँ वो इसके लिए मैंने किया। इट वॉज वेरी पेनफुल, आई नो दैट, लेकिन कैंसर से ज्यादा पेनफुल नहीं था। सो यूज टू हो गया। एंड पॉजिटिविटी एंड फ्रेंड सर्कल्स एंड माई फैमिली, उनको देख के मैं आगे बढ़ने की सोची थी। दर्द को जाने दो, आगे निकल जाए, ये वक्त भी निकल जाएगा। आई ऑलवेज टेल माई पेशेंट्स, जो जिसको मिलती हूँ, निकल जाएगा, वक्त निकल जाएगा। हर वक्त एक जैसा नहीं होता है, निकल जाएगा, डोंट वरी, बट यू फाइट विद दैट। एंड आई ऑलवेज से कैंसर मेरे साथ फाइट किया, मैंने कैंसर के साथ फाइट नहीं, कैंसर ने फाइट किया मेरे साथ। आई फॉट ब्रेवली, लाइक बिल्कुल बिल्कुल। एंड द बेस्ट पार्ट इज कि आपने अपने आप को बहुत पॉजिटिव रखा, जो बहुत जरूरी होता है आपकी हीलिंग के लिए। अगर आप अपने आप को राइट, स्ट्रेस करोगे तो आपकी बॉडी उतनी अच्छे से हील नहीं हो पाती है। सो अगर मैं वेरी आपसे पूछूं कि कैंसर ने आपको क्या लर्निंग्स दी है, या फिर आप जैसे हर एक्सपीरियंस एक लर्निंग्स आता है, सो आपके लिए कैंसर ने क्या लर्निंग दी? yeah. I I proudly say I'm a cancer survivor because cancer taught me जिंदगी कैसा जीना है, क्या खाना क्या पीना है, बॉडी को कैसा मेंटेन करना है, और लोगों के साथ कैसा रहना है। कैंसर से सीखी हूँ मैं, पहले मैंने नहीं सीखा था। पहले लोग ऐसा बोलेंगे, आई एम नॉट बॉदर अबाउट समाज, आई एम नॉट, बिकॉज वी आर मेकिंग समाज, समाज तो हम बनाते हैं। मेरे कैंसर के टाइम कोई समाज पैसे देने नहीं आया था, फंड देने नहीं आया था, दैट आई ऑलवेज टेल। मुझे 1 रुपया भी देने नहीं आया था। सो आई एम नॉट बॉदर, मैं बेली कपड़े पहनूं, शॉर्ट कपड़े पहनूं, आई एम नॉट बॉदर, आई डू वॉट एवर आई लाइक, बिकॉज कैंसर टॉट मी व्हाट इज लाइफ। और कैंसर ने ये सिखा दिया जिंदगी कैसे जीना है। तो मैं कैंसर को बोलती हूँ, आई एम प्राउड टू बी कैंसर सर्वाइवर, क्योंकि तुमने मुझे सिखाया। भले मैंने तुम्हारे साथ फाइट किया, यू ट्राई टू फाइट विद मी, बट आई फॉट विद यू, बट यू टॉट मी मेनी थिंग्स, जिंदगी कैसे जीना है, पॉजिटिविटी कैसा रहना है। और स्पेशली ये श्वास, ये जो ब्रीदिंग हो रही है ना मेरी, आपसे बात कर रही हूँ, बिकॉज ऑफ कैंसर, बिकॉज ऑफ कैंसर आई एम टॉकिंग टू यू, बिकॉज कैंसर ने मुझे जिंदगी में बहुत कुछ सिखाया। एक मेरी जिंदगी चल रही है, जो मेरे बाल आ गए, लंबे बाल हो गए, मेरे अच्छे अच्छे बाल हो गए। आई डिडंट कलर माय हेयर बिकॉज आई हैव सम परफॉर्मेंस नेक्स्ट वीक, तो मुझे अपॉइंटमेंट नहीं मिला। मैंने बोला कोई बात नहीं, ऐसे भी मैं ब्यूटीफुल हूँ, चलेगा। इट्स ओके। सो कैंसर टॉट मी मेनी थिंग्स, बहुत कुछ सिखाया। किससे नाता रखना है, किससे नाता नहीं रखना, वो भी सिखाया मुझे। किससे दूरियां बना दिया मुझे, यस। जो वक्त में मेरे काम नहीं है, उनको मैंने कट ऑफ कर दिया लाइफ से। When the people used to come and do, अरे कैंसर हो गया, तो तेरी मम्मी के में दारू पीती थी, तू सिगरेट पीती थी, तो मैंने मजाक में बोला मैंने छोड़ दिया, अब नहीं पीती हूँ मैं। तो मैं हस्बैंड से मस्ती नहीं कर, ये लोग समाज में वो बातें करेंगे। मैं बोले तो क्वेश्चन क्यों कर रहे हो लोग, दे कांट डू एनीथिंग फॉर अस, व्हाई दे आर आस्किंग, अपने डॉक्टर से ना पूछने के लिए। क्योंकि बेचारी के बाल चले गए, बेचारी अभी कितने साल जिएगी। आई से कट ऑफ दिस रिलेशन, तुम्हारे ससुराल वाले भी तो छोड़ दो। माय मदर इन लॉ, फिर जब मेरे बाल जाने लगे ना, आई टोल्ड माय मदर इन लॉ, मम्मा आई गॉट कैंसर। शी स्टार्टेड क्राइंग, तू क्या बात कर रही है। जब रिपोर्ट बिठाया मैंने उसको बताया नहीं, ऑपरेशन हुआ तो मैंने बताया नहीं। जब मेरे बाल झड़ने लगे तो आई टोल्ड, आई बिकेम टकली माँ बिकॉज आई गॉट कैंसर। तो उसका टीयर शेड हो गया, रोने लगी। तुझे भी बीमार, मैं भी बीमार, घर कैसे चलेगा। ये लड़का, मेरे बेटे को तो कुछ पकाने करने नहीं आता, क्या करेंगे। मैं बोली मम्मी सब ठीक हो जाएगा, लेकिन एक बात याद रखना, मैंने मम्मी को बोला है, अगर आप पहले मर जाओगी ना, हम दोनों कन्वर्सेशन हमारे सामने यहाँ ही बैठे थे, मम्मी मम्मी अगर पहले आप मर जाओगी ना, तो ऊपर जाके ना हमारा फंड का सब क्लियर कर देना प्लीज, हम लोग को पैसे की प्रॉब्लम है। अगर मैं मर गई ना मम्मी पहला, आपसे पहला, तो मैं भगवान को बोलूंगी ये घर में सब सब अच्छी तरह सब खत्म हो जाए स्मूथली। तो मैं मम्मी ने बोला, अरे मरने के बाद कौन जीता है बेटा। मैंने बोला मम्मा आपको बोलने में क्या जाता है, आप इतना तो बोल सकते, हाँ मैं बोलूंगी करके। तो वो हंसने लगे। एंड टुडे शी इज नॉट देयर, नो मोर विद अस, but her blessing is always there. Whenever I go, I pray to her, Mama, I'm going for this competition. Mama, I'm going for treatment. Mama, I'm going for. Her blessing is there.
उसके बाद हमारा सब कुछ अच्छा हो गया, यू नो। कैंसर के बाद फाइनेंशियल प्रॉब्लम, एवरीथिंग इज सॉल्व। टुडे आई कैन हेल्प अदर पीपल, लाइक यू नो, कोई कीमो वाला भी होता है, मैं इनको एक कीमो का उनको दे दो ना, 10,000 करके 4 जन दे दो, 40,000 तो हो जाएगा ना। वी कैन हेल्प पीपल। और वो टाइम हमारा ऐसा था कि नोबडी, 1 रुपए के लिए हम लोग तरसते थे, बट नाउ गॉड इज देयर, भगवान देखता है। सो व्हाट आई सफर, आई ऑलवेज बिलीव कि उनको नहीं होना। मैं उससे फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं है ना, फाइनेंस थोड़ा मैं कर सकती हूँ, ज्यादा नहीं, लेकिन थोड़ा मैं कर सकती हूँ। थोड़ा मैं करूँ, कोई और करे, तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। सो उनका क्या है, 75% जो मेंटली ये होता है ना, क्या बोलते हैं, स्ट्रेस, वो क्लियर हो जाता है। यू नो, फाइनेंशियल दिस स्ट्रेस इज वेरी इंपॉर्टेंट कैंसर के टाइम, बहुत खराब कर देता है इंसान को। पैसा कहाँ से आगे पैसा, हम जाके खाली इतना ही बोलेंगे ना, एक कीमो का मैं कर दूंगी आप, डोंट वरी, तो उनको कितना रिलीफ हो जाता है और सम पॉजिटिविटी मिलता है ना, तो 50% बीमारी तुम्हारी चली जाती है। कोई भी स्टेज हो, कोई भी स्टेज हो, यू जस्ट गो पुट योर हैंड ऑन देम एंड एक हग करो, उसको बोलो। आई डोंट बिलीव कि अभी कोरोना है हग वग मत करो, मैं बिलीव नहीं करती हूँ। एक हग करके बोलो, डोंट वरी, एवरीथिंग विल बी ओके। फाइनेंशियल प्रॉब्लम है ना, मैं 2-4 ट्रस्टी से बात करती हूँ, और थोड़ा मेरे से होता है ना, मैं अमाउंट नहीं बताती हूँ, क्योंकि कभी वो अमाउंट हुआ नहीं, तो मैं थोड़ा आपको हेल्प करती हूँ। पैसे के लिए आप चिंता मत करो। अभी मेरी एक फ्रेंड है, उसको नवसारी में हुआ है थ्रोट कैंसर। बिकॉज वो जब जब भी मेरा व्यूज वगैरह देखती है ना, तो बोलती है भाभी आप इतना लाइवली है, आई एम सो हैप्पी, प्राउड ऑफ यू, सलूट बोले। अब भी मुझे पता चला, तो मैंने बोला एनी सपोर्ट, मोरली, फिजिकली, फाइनेंशियली, आई एम देयर विद यू, डोंट वरी। आई टोल्ड माय हस्बैंड, उनको दे देना, पैसे की जरूरत पड़ेगी तो। ही से ओके, शी इज माय गुड फ्रेंड। मैंने बोला भले वो लंबे रहती है, बट मुझे हमेशा ये करती है ना, इंकरेज करती है, भाभी ये उम्र में भी आप ये कर रहे हो, अच्छी बात है। लोगों को कितना अच्छा लगा देखने को, मेरे आंख से टीयर्स आ जाते हैं आपको देख के कि आप कैसे थी, कैसे हो गए करके। मैं बोले आप लोग की ब्लेसिंग, दीज आर द थिंग्स, यू नो। या Yeah, so that's actually very good कि कैंसर पेशेंट होने के बाद आप सबसे ज्यादा समझ सकते हो दूसरों को जो इसी चीज से गुजर रहे हैं। तो आप बाकी कैंसर पेशेंट्स को who are going through this journey right now, उनको आप क्या मैसेज दोगे? आई टेल ऑल द पेशेंट, बी पॉजिटिव, whatever comes on your way, जो भी आ रहा है आपके रास्ते में, रुकावट आ रही है, जो भी है, सब चीज के सोल्यूशन निकल जाएंगे, लेकिन स्ट्रेस मत लेना। बिकॉज आजकल क्या है, यू गेट द गवर्नमेंट के थ्रू से भी कोई हेल्प मिलता है फाइनेंशियली, ऑनलाइन में कुछ फॉर्म भरना पड़ता है, अभी मुझे पता चला है, यू गेट 75% सब कुछ हेल्प मिलता है। मिस्टर मोदी ने, प्राइम मिनिस्टर ने कुछ ऐसा निकाला हुआ है। सो दोज हु आर फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, वो डाउनलोड करके फॉर्म भर के टाटा में सबमिट कर सकते हैं, तो उनको वो मिल जाएगा। और कभी भी ये मत डरो कि कैंसर हो गया तो मैं जी नहीं पाऊंगा, या मुझे बाल चले जाएंगे, मैं गंदी लगूंगी, डोंट थिंक लाइक, look at me, I'm so happy now, I'm so positive, पॉजिटिव ही रहना। और फैमिली, फ्रेंड्स, जो भी है, उसके सब मिलके आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। इसलिए कभी भी, और स्पेशली व्हेन यू आर गोइंग टू द ट्रीटमेंट, खाओ पियो और अपना हेल्थ का ध्यान रखो, टाइम टाइम पे मेडिसिन। और एक चीज मैं बताना चाहती हूँ, जो भी कैंसर पेशेंट्स है, डोंट कीप ऑन चेंजिंग योर डॉक्टर्स। मेरे साथ 2-3 जन आए हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहती, वो बेचारे एक्सपायर भी हो गए। समटाइम देखो टू, कभी आयुर्वेदिक दवा लेते हैं, कभी होम्योपैथिक लेते हैं, कभी एलोपैथिक, और कीमो छोड़ देते हैं। प्लीज वो मत करिए। जहां पे आपने शुरुआत की है, एंड तक वहां ही जाइए, एक ही डॉक्टर को पकड़ के रखिए। और लोगों की बात मत सुनो कि आयुर्वेदिक में जाओ तो अच्छा होगा, इसमें खराब होगा, बाल जाएंगे, आपकी हालत खराब होगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वीकनेस तो आएगी, पर हमको घर में आके खाना पीना है, अच्छा खाना खाना। ऑल फूड वी हैव टू ईट, दाल भात रोटी भाजी छाछ जो भी है, दूध वूध पीना है, और अच्छा अपने ताकत वाली खाना खा के फिर ठीक हो जाओगे। और इट इज ओनली फॉर 1 ईयर और 1.5 साल, उसके बाद आप नॉर्मल हो जाओ। जैसे हमको बुखार आता, हम 3 दिन पड़े रहते हैं पलंग में, आप यही सोचो मुझे एक तरह की बुखार है, मैं आराम कर रहा हूँ 1 साल के लिए, उसके बाद यू आर नॉर्मल। इसके लिए कभी भी डॉक्टर चेंज मत करो। और डोंट गो फॉर रूमर्स, किसी की बातें मत सुनो, ये डॉक्टर अच्छा है, वो डॉक्टर अच्छा है, ये इन्होंने, मैंने टीवी में देखा है, ऐसा करता है, वैसा होता है, चैलेंज करते हैं। डोंट गो फॉर दैट। एक ऑन्कोलॉजिस्ट को पकड़े हैं, उनको ही पकड़ो। एक सर्जन को पकड़े हैं, उनको ही पकड़ो। लोगों की बातों सुनो मत, और समाज की बातें मत सुनो। जो आपका दिल करता है, जो आपका डॉक्टर कहता है, वो करो। क्योंकि दुनिया विल टेल सो मेनी थिंग, बहुत कुछ बोलेंगे, ये डॉक्टर, हमारे गांव में ऐसा डॉक्टर है, वहां चलो, नहीं जाओ प्लीज। मैं तो हाथ जोड़ती हूँ कैंसर पेशेंट्स को, ऐसा मत कीजिए आप। मैंने खुद देखा है, 3 केसेस ऐसा देखा है। मुझे रोना आता है जब भी मैं देखती हूँ उनका स्टोरीज। मैं जाके मिल के आई हूँ उनको, और वो नहीं रहे, तो दुख होता है मुझे। मैंने इतना समझाया उनको, लेकिन वो बोलते हम गाउटी दवा करेंगे। डोंट डू दैट। एलोपैथिक तो चाहिए हमें ये टाइम पे।
और डॉक्टर नोज बेटर देन आवर फैमिली मेंबर्स एंड फ्रेंड्स से ज्यादा डॉक्टर को पता चलता है क्या करना क्या नहीं करना। जो डॉक्टर आपको प्रिस्क्रिप्शन लिख के देते हैं वो फॉलो करो। आपके जेठानी ने वो बोल दिया, सास ने बोल दिया, डोंट गो फॉर दैट। वो लोग डॉक्टर्स नहीं है। हाँ, हमारे फैमिली मेंबर्स है, वो बोलेंगे ठीक है, लेकिन दे आर नॉट डॉक्टर्स। इसके लिए आप प्लीज एक जगह कंटिन्यू करो मेडिसिन, कंटिन्यू एक जगह ही कीमो करो, एक जगह ही कम व्हाट इज दैट रेडिएशन करो, पीछे मत हटो। भले वो 1 साल की दवा चले या 2 साल की, बी कंटिन्यू विद दैट एंड बी हैप्पी, हंसते रहो। और ये सब अपनी जर्नी है ना, याद रहेगी। एक एक सेल्फी निकाल लिया करो जब तुम्हारा कीमो होता है, जब डॉक्टर से बातें करो। ये सब पीछे जाओगे ना मुड़ के, तब लगेगा अरे मैं ऐसे थी, और सो ब्यूटीफुल विद द बर्ड है, तब याद आएंगे आपको। इसके लिए मेरे पेशेंट्स प्लीज ऐसा मत करना, किसी की बातें नहीं सुनो, एक ही जगह ट्रीटमेंट करो और खुश रहो, पॉजिटिव रहो। फाइनेंशियल भी मोदी जी ने बहुत सारे स्कीम निकाले हुए हैं, आप लोग उसको फॉलो कर सकते हो। और आपके ट्रस्टीज भी होते, ट्रस्ट भी होते हैं जो आपको मदद करते हैं। फ्रेंड सर्कल्स तो होते होंगे सबके, और सबकी बीमारी एक नहीं होती है। अब मुझे ब्रेस्ट कैंसर हुआ है तो मैं दूसरे को एडवाइस नहीं दूंगी ये गोली खाओ करके, सबका अलग अलग बॉडी है, एवरीथिंग इज डिफरेंट। कभी अभी मैं बोलूंगी मैं ये गोली खाते आप खाओ ठीक हो जाएगी, बिल्कुल नहीं करना, आपका डॉक्टर जो बोले। क्योंकि मेरा ब्रेस्ट कैंसर अलग होता है, किसी का स्टेज अलग होता है, मेरा डिफरेंट था, उनका डिफरेंट है, तो कभी वो सब फॉलो मत करो, डॉक्टर को फॉलो करो। और डॉक्टर जो बोलते हैं उसको एकदम फॉलो करो, यू ऑल विल बी फिट एंड फाइन। 1 या 1.5 साल उसके बाद आप मेरे जैसे सामने आके बैठोगे विद द मेकअप एंड ऑल, लवली टॉकिंग एंड ऑल। This I want to tell all the cancer and survivors को बोलना चाहती हूँ, एक्सरसाइज कीजिए, अच्छा खाना खाइए, पॉजिटिव रहिए, एंड व्हाट इज पैशन, आपका जो पैशन है वो करो। डोंट लुक बैक कि मुझे कोई कुछ बोलेगा, नहीं, यू आर सर्वाइवर, यू गॉट द सेकंड लाइफ। एक लाइफ तो हमारी चलेगी, वी आर सो लकी वी गॉट द सेकंड चांस, सो व्हाई डोंट यूज इट वाइजली। अच्छा खाओ, अच्छे लोगों से मिलो, गो फॉर द पार्टीज बट डोंट ड्रिंक, डोंट स्मोक। पार्टी में डांस करो, मजा करो, आ जाओ, तुम फ्रेंड्स बनाओ, अच्छे अच्छे लोगों से मिलो, अच्छे अच्छे टिप्स दो लोगों को जो तुम्हारे साथ हुआ कि तुम भी ऐसा करो, ध्यान रखो, एंड डू एक्सरसाइज प्लीज। एक्सरसाइज करते रहना चाहिए बॉडी को मेंटेन करने के लिए। दिस मैसेज आई वांट टू गिव माय सर्वाइवर्स। थैंक यू सो मच अंजलि जी, आपने बहुत सारी पॉजिटिव बातें बताई है और मैं कम्प्लीटली अग्री करूंगी कि आफ्टर कैंसर एंड बिफोर कैंसर तो अपनी हेल्थ पे जरूर ध्यान दें और अपने आप को फिट रखने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। सो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग आउट योर टाइम टुडे एंड हमें बहुत सारी पॉजिटिव बातें बताने के लिए। Thank you, Manvi. We'll meet you soon, and thank you so much. A big hug to you, and big hug to my cancer patients and my cancer survivors. Love you all. Be strong and be safe. Yeah. Thank you so much. Thank you. Thank you.